Hello. Good evening, Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. evening, sir. Good evening, Himanshu, Anska, Good evening, Tripti, sir. Astha, Ravi, and all of you. Good evening, sir. So, yesterday session we elaborated tribal related features. PPT visible. Yes, sir. Yes, sir. So here, yesterday it was the topics of discussion that Gurier's and Barrier's Alvin approach of tribal solution of tribal problems. We elaborated a lots of features that will not easily find in any notes or like book here. So some exclusive feature we elaborated, Gurier's approach and Barrier-Elvin's approach. Okay, Barrier-Elvin gave the national park policy, and on the basis of that, Nehru developed the tribal Panchsheel policy. Barrier-Elvin was the anthropologist who studied Gond tribe of Madhya Pradesh. Gond, the largest tribal group in India. So here, their recommendation, it is also called national park and isolation policy. On the other hand, Ghurye's approach is called integration, or Ghurye called tribal, the backward Hindu. So these points should be kept in mind. And now we are going to discuss the other correlated features. It is very comprehensive and lengthy topics. So here, this units here ground on which any community is declared scheduled tribe. Just like the scheduled caste is declared by President of India, similarly here there are some points, the terms and conditions on the basis of which President of India declares a community as scheduled tribe. Firstly, living in defined geographical area. That is here generally tribal groups are living in mountain area, hill area, forest area. Traditional source of livelihood, that is animal husbandry, maybe forestry or hunting gathering like that. And distinct cultural heritage, that is उनके culture rest of the India के जो people हैं उससे different हों. एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दैट अभी भी मछली मारने चले जाते हैं, शिकार करने चले जाते हैं, लाइक दैट. एंड उनकी जो जोग्राफिकल एरिया हो, ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया होते हैं, हिल एरिया होते हैं. So in that area, tribal people are inhabiting India. If any community have distinct language, their own custom, traditions, art, as well as culture, which are very, very primitive. So this point is also considered. Language should be totally, they generally speak their dialects, tribal dialects, or that language is different from the other language or dialect. Their custom and tradition are also different from our Indian traditions. Art, they have the distinct art. खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब हैं वह बहुत ही अच्छे बम्बू से बहुत अच्छे अच्छे टोकरी बना लेते हैं, छोटे छोटे चीज से बनाते हैं. बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं. बहुत सारे ट्राइब बांसुरी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं. बहुत सारे जो ट्राइबल हैं वो हैंडीक्राफ्ट में उनकी एक्सपर्टीज होती है. सो डिफरेंटली देयर आर्ट इज डिस्टिंग्विश. Lack of educational and economic development, this point refers that they community are educationally and economically lagging behind. पिछड़ा हो शैक्षणिक रूप से और इकोनॉमिक रूप से. तो ये कंडीशंस होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस कंसिडरेशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का गवर्नर ये रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर कीजिए. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट कम्युनिटी एज ट्राइब. सो दिस इज द बेसिस ऑन व्हिच ट्राइबल कम्युनिटी इज डिजाइन और देयर नेम आर हियर लिस्टेड. अभी अफसोस की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले सर्वे आया था आसाम में. बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं जो ट्राइबल हैं, बट उनके ट्राइबल जो
कैटेगरीज में उनके नाम नहीं है, उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलता, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं दूसरे कैटेगरीज में रख दिया गया। तो दिस इज हियर, इसको चेक करना है कि कई बार नेम में या रिकमेंडेशन भेजने में या उसको ट्रेस करने में, या कुछ सही कम्युनिटी का नाम नहीं गया, कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन के कारण, मे भी कुछ और अदर इंटरवेंशन हो। सो आसाम में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं, जे दे आर ओरिजिनली ट्राइबल इन दिस पैरामीटर्स, बट उनको ट्राइबल का बेनिफिट नहीं मिलता या उनको सरकार ट्राइब नहीं मानती। ऐसे इश्यूज हैं इंडिया में। नाउ यू हियर सी constitutional provision, constitutional safeguards and provision for scheduled tribe. Are you getting my points? आवाज आ रही है? Yes, sir. And this point, you PPT visible? Yes, sir. Yes. Yes. So similarly, just like the scheduled caste context, so many articles. These articles are very very important. PT point of view से बहुत important है. Repeated एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस और हो यूपीएससी हो। फर्स्ट, definition of the tribal community. Definition of tribal community, article 345 scheduled tribe, article 366 25 के तहत डिफाइन किया गया है इसको। 345 शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, 366 25 में, ये दोनों में इनको प्रॉपर तरीके से संविधान में डिफाइन किया गया है। फिर है इकोनॉमिक, सोशल, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर प्रोटेक्शन। 15, आर्टिकल 15 जैसे नॉर्मल है, ट्राइबल पर भी लागू होता है, दैट इज द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 16 जस्ट लाइक द शेड्यूल कास्ट में भी हम देखे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस, तो उसमें ट्राइबल को भी ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। 16(4) इन क्लाउज 4, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक अदर कम्युनिटी की तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द पीपल हैव। 46 अगेन रिपीटेड, शेड्यूल कास्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST कम्युनिटी से रिलेटेड है, ओबीसी भी आ जाते हैं। Article 335 claim in public service, that we have already elaborated earlier. Now you see political protection, Article 330 earlier we also discussed that reservation of SC ST in Lok Sabha, that is the constitutional reservations, कि उसको एक parliamentary constituency in any state is considered reserved for the scheduled tribe and scheduled caste also, यदि ये ट्राइबल पॉपुलेशंस वहां है तो। आर्टिकल 332, अंडर दिस इन स्टेट लेजिस्लेटिव रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड। 332 लोकसभा, 330 लोकसभा, 332 इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 243D पंचायत में रिजर्वेशंस, दैट अर्लियर डिस्कस्ड। सेम आर्टिकल्स रिपीटेड हियर, SC के लिए जो है वो सारे ST के लिए भी आर्टिकल आते हैं। तो 243E नगर पालिका, म्यूनिसिपल बॉडीज, मॉनिटरिंग बॉडीज। 338A नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, दिस इज a provision here. So whenever in 2004 the SC ST commission developed into the two different wings, two different independent commission. So under it ट्राइबल कमीशन है, एंड ट्राइबल कमीशंस में भी वही स्ट्रक्चर है, उनके जो मेंबर्स होते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें एक लेडी मेंबर्स के भी प्रोविजंस हैं। सो ये सारे जो ट्राइबल कमीशन है, दे जस्ट चेक द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट एज वेल एज इंटरेस्ट in our countries. Now you see definition of scheduled tribe and direction. Article 366 clause 25 defined ST.
As such group or communities or tribe mentioned under Article 342, 342 के तहत जो आते हैं उस आधार पर में डिफिनेशन जो उस लिस्ट में है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड ट्राइब। अंडर आर्टिकल 342 में लिस्टेड है कि हु आर द ट्राइबल कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफाइन करते हैं। अंडर आर्टिकल 342, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया with the consultation of governor of the state declares communities, that is we have elaborated. This is there under article 342, किसी कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर करने का जो राइट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, और वह गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद ये डिसीजन लेता है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन आल्सो डिक्लेयर ए कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब। पार्लियामेंट अलग से उसको बना सकता है, कानून बना सकता है, लॉ ला सकता है, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और किसी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकता है। जनरल प्रोविजन 19(1) provides right to live and visit any part of India to its citizen, but to protect the tribal cultural heritage of Jarwa tribe on Andaman Nicobar, Supreme Court banned tourist activities in 5 km periphery in 2012. This is here 19(1). 19(1) में है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इट इज माई फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में आते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया कि अंडमान निकोबार में जो जरवा ट्राइब है, जरवा ट्राइब के 5 किलोमीटर जहां वो रहता है उससे 5 किलोमीटर पहले ही उसको रोक दिया जाता है टूरिस्ट को, आप उस पेरिफेरी में नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? 2012 में सच टाइप ऑफ डिसीजंस टेकन कि जो यहाँ से टूरिस्ट जाते हैं वह जरवा, ओंजे, सेंटिनल्स, ये 3 मेजर ट्राइबल ग्रुप इन अंडमान निकोबार। तो व्हाट हैपेंड कि वह उनके कल्चर के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, उनको कुछ केले खाने के लिए दे दिया, बोला डांस करके दिखाओ, फिर उनको इस कल्चर से, खान पान से जोड़ने लगते हैं। तो ये देखा गया कि उनका जो एग्जिस्टेंस है उस पे, उनके कल्चर पे, आर्ट पे, उनके नेचुरल लिविंग को डिस्टर्ब करते हैं ये। सो इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट गेव द वर्डिक्ट कि जरवा, ओंजे, सेंटिनियल्स इन एरिया में टूरिज्म को नहीं अलाउ किया जाए, पहले ही रोक लिया जाता है। आप उस एरिया में जहाँ रहते हैं उनके नेचुरल जो निवास है वहाँ नहीं जा सकते हैं। अभी लास्ट ईयर एक अमेरिकन टूरिस्ट को जो सेंटिनल्स ट्राइब ने मार दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल अभी भी जंगली जीवन जीते हैं। कोई हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को देख के लगता है कि ये कौन आ गया, हमारा दुश्मन तो नहीं है। और फिर वो नंगे रहते हैं, वो काले हबसी की तरह होते हैं, गुंडाले बाल होते हैं, निग्रो हैं, निग्रोइड हैं, और फिर वो डर के भाग जाते हैं, कई बार उनको मार देते हैं। ऐसे कई घटना हुए हैं वहां पर। तो दिस इज हियर उनके नेचुरल लिविंग शैली को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है इट इज मेयरली किन्हीं का 200, किन्हीं का 250 लाइक दैट। सो मोस्ट इंडेंजर्ड ट्राइब, और जो स्पेशली पर्टिकुलर वल्नरेबल जिसको हम बोलेंगे। Under Article 244, administration of scheduled or tribal area. This is the exclusive provision of the tribal area. Scheduled area. Scheduled area generally declared by our government of India under these articles, that जहाँ tribal population more than 50% in any locality, districts में या फिर किसी राज्य में का कोई district या कोई और, या more than 50% tribal population हो, the area is declared as scheduled area। और फिर उसमें स्पेशल तरह के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके बदल जाते हैं वहाँ पर में, और तरह की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के अलग से होते हैं, फैसिलिटेशन होते हैं वहाँ ट्राइबल के लिए। तो वहाँ जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है वो दूसरे ढंग से काम करता है। इफ़ यू आर जस्ट पोस्टेड इन द शेड्यूल्ड एरिया, स्पेशली मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड आसाम, इन सब में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो अलग टाइप का होता है। So this is here under Article 244. Keep in mind administration of scheduled area. Very important. 244(1). Scheduled area will be those area which is declared by President with the consultation of Governor under 5th Schedule. This is also the provision. This should state
And fifth and sixth schedule of Indian Constitution are related to tribal community. Just like the eighth schedule of Indian Constitution is related to language, similarly fifth and sixth schedule are related to tribal community. And 244 1 under this scheduled area जो है, it is the power rests with the President of India on the consultation of governor. वो जब रिकमेंडेशन देते हैं तो कंसीडर करके एक पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का ये पूरी राइट भारत के प्रेसिडेंट को है. आर्टिकल 244(2) it covers the scheduled area in the states of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. आर्टिकल 244(2) के तहत इन दिस 4 स्टेट शेड्यूल्ड एरिया जो हैं, जहाँ की कई डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, मतलब वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर ये ऑटोनोमस काउंसिल की बॉडी डिसाइड अबाउट द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और लाइक दैट, एंड मोस्टली वहाँ ट्राइबल लोगों का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है. सो ये 4 स्टेट में आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होते हैं, दे आर मोर पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड इट डिसाइड अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल. आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 275 कई बार आया है, रिपीटेड यूपीएससी में आए हैं, स्टेट पीसीएस में आए हैं. 275 ग्रांट्स टू शेड्यूल्ड एरिया, ग्रांट्स टू शेड्यूल्ड एरिया. 275 के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल ग्रांट्स देते हैं शेड्यूल्ड एरिया को, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज है, और उसको डेवलपमेंट के अलग से वो क्या कहते हैं पैसे अवेलेबल करवाते हैं. कंट्रोल ऑफ यूनियन in respect of administration and welfare of scheduled area. This is here. यदि any scheduled area है आसाम में, मणिपुर, कहीं भी, तो यहाँ का पावर सारे चीज वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, ये डायरेक्टली कंट्रोल. इट इज जस्ट लाइक द यूनियन, केंद्र सरकार जैसे केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसी तरह से शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड ऑल दीज इट इज केंद्र सरकार के पास होते हैं, यूनियन के पास होते हैं. अंडर आर्टिकल 339 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इज कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. आर्टिकल 164 प्रोविजन ऑफ स्पेशल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री, स्पेशल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री इन मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. स्पेशल ट्राइबल मिनिस्ट्री की प्रोविजन है. नाउ हियर दीज आर द डिफरेंट आर्टिकल्स अंडर व्हिच, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे. जिन लोगों को फॉरगेटिंग होती है, इसको अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में उठ के पढ़ो. जो रटने वाली जो चीजें हैं, आर्टिकल वगैरह सब जो है, याद करने वाली जो चीजें हैं, मॉर्निंग में आप पढ़ेंगे तो उसकी मेमोरी पावर ज्यादा अच्छी होती है. 5 बजे सुबह में उठ के पढ़ो, आर्टिकल वाला जो सेक्शन है, भूलोगे नहीं. Legislative mechanism. Legislative mechanism. Proposal of tribal ministry. Proposal of tribal ministry आज काम कर रहे हैं, forwarded to concerned state and union territory in case under Article 340. After acceptance, proposal is forwarded to Registrar General of India. With acceptance of Registrar, proposal is forwarded to Union government. यूनियन गवर्नमेंट फॉरवर्ड टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के कमीशन के पास भेजते हैं. फिर ये जब एग्री होते हैं तो फिर इसको डिस्कस किया जाता है मिनिस्ट्री के साथ, फॉरवर्डेड टू कैबिनेट को भेजा जाता है, और कैबिनेट फिर बिल टेबल पे लाते हैं पार्लियामेंट में, और फिर जाके फाइनल जो सिग्नेचर होता है प्रेसिडेंट का. लंबा प्रोसीजर होता है कि व्हाट एवर द लेजिस्लेशन, यदि कोई ट्राइबल से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, वो इट इज नॉट नॉर्मली वेरी लेंदी प्रोविजन है, जिसमें कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां से भी इसको पास कराना होता है. उनकी सैंक्शन बहुत जरूरी है. आप देख लो कि आप कोई भी कानून बनेगा तो नेशनल ट्राइबल कमीशन की उसमें एग्रीमेंट में सहमत जरूरी है, एसेंट. नाउ यू सी हियर
in there some laws are very related to the tribal communities in India. Like here in Forest Right Act 2006, this is here, since tribal community have very close relationship with the forest, in jungle or janjati, jungle and janjati. Are you getting my points? Yes, sir. In UPSC में क्वेश्चन आया है, हिमांशु, अंशिका, रवि, यस सर, यस सर, जंगल और जनजाति के बीच क्या संबंध है, इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि बिकॉज द ट्राइबल लाइफ स्टाइल, देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लार्जली रिवॉल्व्स अराउंड द फॉरेस्ट, दे कलेक्ट फूड्स फ्रॉम देयर, फ्यूल वहां से उनको मिलते हैं, तेंदू लीफ लाते हैं, उनके कल्चर, वे ऑफ लाइफ में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है. So earlier it was the British government. British government introduced so many laws, imposed so many restrictions on the tribal community, and as a result of it, they revolted against the British, like guerrilla warfare, Birsa Munda or Siddho Kanu and other tribal leaders emerged. After independence, so many laws developed. Here, in 2006, Forest Right Act was passed because it was so many movement in India by tribal community against the existing policies of the government. So government just passed this act. Tribal right to agricultural land and forest. Under this year, in local area, जो एग्रीकल्चरल लैंड है एंड फॉरेस्ट है, उस पर ट्राइबल का राइट होना चाहिए. उस एरिया में जो नॉन ट्राइबल्स पीपल कैन नॉट क्लेम ऑन द लैंड, इवन कि आप खरीद भी नहीं सकते हैं. और फॉरेस्ट पर भी उनके अधिकार को दिया गया कि जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको वो जा सकेंगे, कर सकेंगे, उनसे उनको अधिकार मिला. राइट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन ट्रेडिशनल वेज. फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि दे कैन नॉट कट ट्री, बड़े बड़े पेड़ को नहीं काट सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन अभी भी. लेकिन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे तेंदू लीव्स है, मधुमक्खी के जो निकालते हैं, या और सिर्फ छोटे छोटे चीज जो फ्यूल के लिए ले जाते हैं, उनके लिए उनको ऊपर रोक नहीं होगी. द स्टेट कैन ग्रांट्स फॉरेस्ट लैंड्स टू ट्राइबल. वट एवर द फॉरेस्ट लैंड स्टेट के पास है, उस पर जो अधिकार होगा वह ट्राइबल्स को होगा, वह ट्राइबल को दिया जाएगा. बाकी की कोई एमएनसी को दे देते हैं, कॉरपोरेट को दे देते हैं, बड़े लीडर्स लोग अपने में, ये बहुत ज्यादा इसमें हेराफेरी होते हैं हमारे देश में. Community right on bio and cultural diversities. Biodiversities as well as cultural diversities are. वो सारे चीजों पे ट्राइबल कम्युनिटीज का राइट होगा. वहाँ के जो पूरे नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल डोमिनेटेड है, तो वहाँ पर में आप जाकर के उनके चीजों के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. उनकी पूरी राइट रहेगी लैंड पे और फॉरेस्ट पे. अलाउ ट्रेडिशनल हंटिंग. ट्रेडिशनल हंटिंग का मतलब है हंटिंग अलाउ कि मतलब आप ऐसे हंटिंग जो कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस या जो बायोडाइवर्सिटीज है या कोई ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको डैमेज नहीं करें. मतलब फॉरेस्ट से चूहा पकड़ के ले आया, कुछ ऐसे जानवर को पकड़ के ले आया, लेकिन यदि वो हाथी को मार दिया, राइनोस को मार दिया, तो फिर वो राइट नहीं है. हंटिंग का मतलब हुआ कि फॉरेस्ट चिड़िया कुछ मार दिया, ठीक है, तो कुछ लिमिटेड राइट दिया गया है. मोस्टली क्या होता है कि इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, टाइगर को मार दिया, उसके क्या कहते हैं वन हॉर्न राइनोज को मार देता है वहां पे काजीरंगा में. सो ये तरह के राइट नहीं है. अभी वो क्या कहते हैं पोचर्स के साथ मिले हुए हैं. पोचर्स ट्राइबल को अप्रोच करता है, ट्राइबल अपने तरीके से मारते हैं, फिर उसको वो स्मगलिंग करते हैं इन सब चीजों का पैसे कमाने के लिए. So this type of hunting not allowed. Traditional hunting, जो मछली कोई वहाँ पानी का स्रोत है, मछली है तो मछली पकड़ के ले आओ, मधुमक्खी पकड़ के ले आओ, चिड़िया को कुछ पकड़ लिया, कुछ चूहे हुए पकड़ के लाया वहाँ से, ठीक है कि नहीं. I was teaching in अरुणाचल प्रदेश, वो एक वहाँ बोला क्या कि हम लोगों में मैरिज होता है तो लड़के साइड से रैट्स जंगल से पकड़ के लाते हैं, बड़े बड़े रैट्स, खरगोश लाते हैं ऐसे कुछ, और फिर वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं. तो दिस इज ये, इस तरह से वो हंटिंग करने के लिए. हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे संडे को नहीं आते थे, फ्राइडे को या संडे को नहीं आते थे, बोला कि सर मैं कल हंटिंग करने गया था. मैं क्या पकड़ के लाया, तो बोला रैट्स पकड़ के लाया. ये ठीक है, वेरी गुड. राइट्स टू रिहेबिलिटेशन, कि उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए. वट एवर द जो डिस्प्लेस्ड हैं, जिनका
क्या कहते हैं ऐसे चीज़ों पे जो जहाँ प्रॉब्लम है या बंधुआ मजदूरी करता है, सो उनका पूरा रिहेबिलिटेशन हो और उनको एक नए हिसाब से नए लाइफ स्टाइल दिया जाए। ऐसे ट्राइबल वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फॉरेस्ट, द ट्राइबल लैंड फॉरेस्ट एरिया और उनका जो नेचुरल इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं दे मस्ट बी मेंटेन्ड, कि उनके पानी के साथ, नदी के साथ, पेड़ पौधे के साथ शिकार, मतलब उसमें कोई मशीन चला देना, बड़ी फैक्ट्री लगा देना, उनको तहस नहस आज कॉरपोरेट बहुत सारे कर दिए हैं। सो दिस थिंग्स शुड बी चेक प्रॉपरली कि ये उनके जो नेचुरल इकोलॉजिकल जो लिविंग है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल इज द नोडल एजेंसीज एंड इन दिस रिगार्ड द पावर डिसीजन मेकिंग जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास है, दे कैन टेक द डिसीजन। अगेन सर ये नोडल एजेंसी क्या होता है? नोडल एजेंसी का मतलब होता है कि अपेक्स बॉडी हुआ इस मामले में, फॉरेस्ट या इन सब मामले में सारे डिसीजन जो होंगे वह मंत्रालय के पास है। ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है वह फाइनल डिसीजन लेंगे कि मतलब कहाँ कोई बिल्डिंग बनाना है, अब बिल्डिंग कोई मान लो मॉल बनाना है या कोई ऐसे फैक्ट्री खोलने हैं जिससे कि ट्राइबल का इकोलॉजिकल चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगा, नेचुरल लिविंग डिस्टर्ब हो जाएगा, रेलवे लाइन बनने से, मेट्रो बुलेट ट्रेन जाने से, तो वो पावर मंत्रालय के पास है। वो मना कर सकता है सरकार को कि ये नहीं हो, ये ऐसा करना है, ऐसे करना है। तो नोडल एजेंसी का मतलब हुआ कि वो एक अपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है, वो सबसे मतलब डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में, वो मॉनिटरिंग करता है इन सब चीज़ों को कि हो रहा है कि नहीं, साथ साथ वो चीज़ों को कंट्रोल भी करता है। मतलब मंत्रालयों के अधीन होता है ये हाँ एजेंसी? मंत्रालय के अधीन ही होता है। एजेंसी का मतलब हुआ कि मंत्रालय ही है, मंत्रालय में अलग अलग विंग्स होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों को देख रेख के लिए वो जो फाइनल जो मंत्री होते हैं ट्राइबल मंत्री, वो उनकी सिग्नेचर और सेक्रेटरी ट्राइब जो है उन सब के समझ से तब जाके होता है। एपेक्स ट्राइबल सेक्रेटरी, मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होगा आईएएस होते हैं। ये नहीं, कोई भी देखो जितने भी हमारे यहाँ कानून बनते हैं, जैसे कोयला घोटाला हुआ, अब थोड़ा सा समझो एडमिनिस्ट्रेशन, कोयला घोटाला में मंत्री ने, कोयला घोटाला पीएमओ के पास था, ठीक है। अब पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने कोयला मंत्री को कोयला अपने पास था, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये कोयला नवीन जिंदल के कंपनी को देना है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री ये कह सकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, तब तक नवीन जिंदल के कंपनी को ये टेंडर नहीं मिलेगा जब तक कि कोल सेक्रेटरी, सचिव जिसको बोलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का सचिव सेक्रेटरी, जैसे होम से अभी होम मंत्री है, कहेगा कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं ये काम करना, तो होम सेक्रेटरी जो होगा उसका सिग्नेटरी मेंबर्स वही होता है। भारत में मोदी जी का जितने भी इंटरनेशनल डिसीजन होते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नाम से नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इंटरनेशनल एग्रीमेंट और सारे चीज साइन होते हैं। मतलब सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल है। आप सेक्रेटरी आईएएस होते हैं, ज्यादातर सेक्रेटरी जो सब होते हैं आईएएस होते हैं, वो देखता है लीगल हर एक चीज पहलुओं। कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्री और सेक्रेटरी में तनाव हो जाता है। मंत्री कई बार ऐसे होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीजों पे कहता है, इसी में फंस गया, कोल सेक्रेटरी फंस गया। भाई अब उसके पास जो कोई पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स को नवीन जिंदल की कंपनी फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी उसको आपने टेंडर दिया। आपने टेंडर दिया क्योंकि कोल सेक्रेटरी पे दबाव है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री पे दबाव है मैडम का। अब ये दबाव काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा, उसको हटा देगा कोल सेक्रेटरी को, या बहुत परेशान कर सकता है बहुत तरह से। तो ये चीजें होती हैं कि कई बार, नहीं तो सेक्रेटरी ये कर दे कि साइन नहीं भी करेगा, बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा, रिजाइन मारूंगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो कि आपसे कोई गलत काम, मंत्री आपसे गलत काम करवा रहा है, इलीगल करवा रहा है, 1800 जो ऑक्शन होना चाहिए वो कहता है 200 रुपया में इस कंपनी को दो, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब इलीगल है। अब इलीगल काम, आप आईएएस ऑफिसर हो, आपके जो मंत्री हैं वो दबाव डाल रहा है, तो क्या आप करोगे हिमांशु? नो सर। तो इसमें देखो जितने भी सिग्नेटरी मेंबर होते हैं ना वो मोस्टली सेक्रेटरी होते हैं। तो जो ट्राइबल सेक्रेटरी है वो फाइनल जो रिटर्न होता है, जब फाइल साइन करने की बात है भाई ये डिसीजन ये हुआ, वही करते हैं। फिर अब ओके मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये चीज होगी, नियम बन गया, कानून बन गया। बड़ी पावर होता है भाई आईएएस, लोग ऐसे नहीं बनते हैं। तुम जिस दिन मान लो तुम आईएएस बन जाओगे, बहुत दिन जब जॉब करोगे अनुभव हो जाएगा, किसी डिपार्टमेंट किसी का मंत्री का सेक्रेटरी बन जाओगे,
ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर तो अगर सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट्स में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है तो कल की डेट में वो भी तो फंस सकता है ना, भले ही साइन उसमें मंत्री किया हो। मंत्री नहीं साइन करता है ना, मंत्री तो चलो वो मंत्रालय मंत्री, लेकिन फाइनल जो होता है वो लीगल साइड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब तो सेक्रेटरी देखता है ना। मान लीजिए कि आप IAS ऑफिस किसी मंत्री के सेक्रेटरी हैं, मंत्री कहता है कि भाई ये फाइल, ये टेंडर इस आदमी को दे दो, अब इस आदमी को दे दो, तो वो आदमी का कंपनी उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। फिर आप क्या करता है, जो होता क्या है कि रूल्स रेगुलेशन को मैनिपुलेट करना, डिस्टॉर्ट करना, ये IAS सबको, सेक्रेटरी सबको अच्छे से आता है, क्लाउज लगा के। लेकिन कई बार ऐसे काम कर गया, फिर बाद में यदि उस पर जांच हुई, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फंसता है। हाँ। ये नहीं, कोल सेक्रेटरी गया ना, कोयला घोटाला जो किया, कोल सेक्रेटरी भी फंसा। फिर वो जांच होगा, भाई आपने ऐसा काम क्यों किया, तो आप कहेंगे तो नहीं कि दबाव में हमारे पास, हमारे मंत्री जी का दबाव था, अब गलत मंत्री जी का दबाव था तो आपने क्यों दबाव, आपने इलीगल काम क्यों, आप वो तो आएगा 5 साल के लिए चला जाएगा, लेकिन आप तो ब्यूरोक्रेट हो, आप तो परमानेंट हो, तो ब्यूरोक्रेट के पास बहुत पावर है यार, वो मंत्री का भी कई बार नहीं सुनते, ठीक है कि नहीं। बहुत संविधान दिया है पावर, UPSC इसीलिए लोग करते हैं। अब हमसे करवा रहा, नहीं करूंगा जी, ये गलत है, इलीगल है, ये नहीं काम करूंगा, लाइक दैट, ऐसे होता है, दबाव डाल देते हैं। This is here. Scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Amendment Act Rules 2012. फिर एक रूल्स आया, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब है जो ऐसे ट्राइब जो परंपरागत रूप से फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगल में उनकी जीवन शैली। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट, उनके फॉरेस्ट पर अधिकार से संबंधित एक अमेंडमेंट रूल्स लाया 2012 में। इसमें प्रोविजन है, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स कैन ट्रांसपोर्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे ट्राइब जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो छोटे छोटे फॉरेस्ट प्रोडक्ट ला सकते हैं, उसके लिए रोक नहीं होना चाहिए। जैसे तेंदू का पत्ता ले आ सकता है, मधुमक्खी चुरा के ले आएगा, कुछ फ्यूल लकड़ी फकड़ी तोड़ के ले आएगा, ऐसे चीज सब के लिए अलाउ के, महुआ चुन के ले आएगा, आम फरे हैं तो तोड़ के ले आएगा, तो इस सब के लिए उसको प्रोडक्ट को यूज करने का अधिकार है। ग्राम सभा कैन डिलीवर परमिट, इसके लिए जो उस वहाँ का ग्राम सभा है, जो फॉरेस्ट में जाएगा ये सब करने के लिए, मधुमक्खी चुराने के लिए, तेंदुपत्ता, उसको एक परमिट देता है कि हाँ आप जा सकते हो, उस पर निगरानी रखता है। द कमिटी अंडर ग्राम सभा कैन मॉनिटर फॉरेस्ट एंड एनिमल, मॉनिटर फॉरेस्ट, कोई बहुत बड़ा पेड़ काट तो नहीं लिया, स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है, या फॉरेस्ट में जाकर के जो किसी जानवर को, तेंदुआ को तो नहीं मार दिया, राइनोज को, तो ये सारा निगरानी करता है, एक कमेटी होता है, वो देखता है ग्राम सभा के अंदर, तो पूरा सरकार ने नियम बनाया है। ग्राम सभा कैन इन्यूमरेट सेल टैक्स एंड अदर लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब ग्राम सभा क्या होता है, उस पर माइनर टैक्स लगा देते हैं, छोटी मोटी, या फिर वो बेचने से संबंधित जो चीजें हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, वो डिसीजन लेता है, ग्राम सभा डिसीजन लेता है। यानी कि पंचायती राज के तहत ग्राम सभा को ये सारे पावर मिले हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट पेशा 1996 में बना ये कानून, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट पेशा पंचायत के तहत है ये। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में 8 पॉइंट अभी और इसी के लगभग है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, याद रखना ये दिलीप सिंह भुरिया कमेटी, PESA came into existence in 1996 for people living under 5th schedule। 5वीं शेड्यूल के अंदर में जिन जनजातियों का नाम है उन सब के लिए ये PESA एक स्पेशल कानून लाया गया। PESA इज इम्प्लीमेंटेड इन 9 स्टेट, ये 9 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें ये कानून है। इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए विलेज और कम्युनिटी ऑन ट्रेडिशन और कस्टम, कि इस एरिया में जो है, जो ट्राइबल एरिया है उसमें ट्रेडिशनल तरीके से प्रशासन चलाने हैं, कि जो मॉडर्न जो लॉ हैं, चीजें हैं, वहाँ लागू नहीं होती। ट्राइबल का जिससे देखो, मैं अरुणाचल में भी देखा हूँ, वहां पर में क्या होता है कि जैसे IAS IPS है
तो बहुत, यदि कोई मान लो झगड़ा हुआ, दो ट्राइबल में झगड़ा